नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विथ अवर अमेजिंग सब्जेक्ट दैट इज biology. For our today's biology class, we are going to talk about this chapter, why do we fall ill. This will be the last lecture for this particular chapter. In today's class, we are going to talk about prevention of disease in detail. Now, students, here what we have to understand is, so far in these lectures, we have seen that if anybody gets a particular disease, the patient suffers a lot because of disease. The patient might come out of the disease, but there are three important factors which actually troubles the patient. Factor number one, it has been seen that a disease will cause some damage to the body. अगर कोई भी इंसान अगर बीमार हो रहा है, सो बीमारी के वजह से उसके बॉडी के किसी न किसी पार्ट का डैमेज होगा, कोई ना कोई फंक्शन अफेक्ट होगा. जैसे अगर लीवर इन्फेक्शन है तो लीवर का फंक्शन अफेक्ट होगा. ओके, लंग्स का इन्फेक्शन है तो लंग्स का फंक्शन अफेक्ट होगा. So the disease will cause some damage to the body and will affect its functioning. Second, other than the damage that is caused, what happens is, even if we give treatment to this particular patient, the treatment will take time. So as per textbook, the second point says, treatment will take time. Now the person who is diseased, who is suffering from an infectious disease, will be bedridden for some time. तो कैसा होगा ना, डॉक्टर है ना उस पेशेंट को आराम करने के लिए कहेगा. ओके, सो वी डॉक्टर्स वी कैन नॉट एडवाइस टू द पेशेंट डायरेक्टली कि भाई आप बीमार है तो आप काम पे जाओ, आप जो काम कर रहे हो वो करो. नो नो नो, वी एडवाइस देम दैट कि आप कुछ दिन के लिए आराम करो. So when the patient is bedridden for some time, the treatment will take time. Third very important damage that is caused because of diseases is, okay, here what happens is, this particular person himself is, the person himself becomes a source of infection. Now let's say suppose for example there is this old man, 70-year-old man, he has got tuberculosis. We are traveling by train. You know how crowded the train is. एकदम चिपक के लोग एक दूसरे को खड़ा रहता है. And then the old man behind you is asking you, he taps your shoulder and you're like yes, then he's like Mumbai Central उतरोगे and you're like हाँ चाचा, then and he starts coughing and you're like चाचा मुंह पे क्या खांसी करते हो, डोंट कॉफ ऑन माय फेस ना, कवर योर माउथ. एंड चाचा इज लाइक ओके सॉरी एंड वी लाइक चाचा सॉरी बोलने में भी खांसी कर रहे हो. सो अब ये इंसान खुद जो बीमार है ना, वो खुद इन्फेक्शन को फैलाएगा. सो द पर्सन हिमसेल्फ बिकम्स अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड ही विल ट्रांसमिट दिस इन्फेक्शन टू डिफरेंट पीपल. एंड वी कैन नॉट शेयर द सेम एयर, द सेम वाटर. In spite of being written in the pledge that all Indians are our brothers and sisters, no, not all Indians are our brothers and sisters. इतना भाईचारा, इतना बहनचारा चालू नहीं रखने का कि हम लोग सेम एयर सेम वाटर शेयर करें. वी आर लाइक हाँ भाई भाई है ना, वी आर इंडियंस, वी आर भाई भाई, मेरा जर्म्स तेरे बॉडी में जाएगा चलेगा, तू मेरा भाई है. नो 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 नो. ओके, right? So the third point says that the person himself is a source of infection. That is the reason why we should follow this principle that prevention is better than cure. So here what do we understand? Even if we treat a patient, अगर किसी का इलाज भी कराए ना तो फिर भी उसको 3 नुकसान तो होगा. नंबर 1, उसके बॉडी को डैमेज होगा. नंबर 2, ट्रीटमेंट को टाइम लगेगा. नंबर 3, वो खुद तब तक बीमारी फैलाएगा. इसीलिए बेटर है कि क्योर ट्रीटमेंट करने से बेटर है कि भाई हम उस डिजीज को प्रिवेंट करें. So because of these three reasons, you can have a give reason for your exams
why prevention is better than cure. Now whenever it comes to prevention, there are two different modes of preventing the infection. So prevention can be done on general level and it can be done on the specific level. Now general level में you will have different forms of prevention. Let's say if the disease is airborne disease, तो हम उसको कैसे prevent करें? If the disease is waterborne disease, तो उसको कैसे prevent करें? If the disease is vector-borne disease, तो कैसे prevent करें? If the disease is blood-borne disease. Whereas specific level का prevention में we are going to talk only and only about vaccination. We will come to vaccination in a while. Let's start with airborne infection. Airborne infection, commonest example which is pandemic all across the globe is corona, COVID-19 virus. अब COVID-19 वायरस को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमको पता है वो जो जर्म्स हैं, वो जो इन्फेक्शन है वो एयर से फैलते हैं. ओके राइट. सो एयरबोर्न इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन वेयर मास्क. वी शुड अवॉइड ओवरक्राउडिंग. We should avoid overcrowding means social distancing. वो गाड़ी के पीछे लिखा होता है ना, रिक्शा ट्रक टेम्पो के पीछे कीप सेफ डिस्टेंस. जब लोग करीब आए ना बोला कीप सेफ डिस्टेंस, चल दूर हो जा, कोरोना. ओके. सो अगर किसी को एयरबोर्न इन्फेक्शन है ना, देन यू शुड अवॉइड ओवरक्राउडिंग, यू शुड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग. Along with that, yes, not to forget we should sanitize our hands over and over again. Very important. Next, अगर कोई बीमारी पानी की वजह से फैल रही है, so number one what we can do is either we can filter the water और सबसे बेस्ट boiling. जब हम पानी को गर्म करते हैं ना, उसके अंदर जितने germs होते हैं उनको चटका लगता है. So suppose if this is a container and we are like germs, moment we start boiling the water, microorganisms are like ouch, ouch, it's too hot, and ultimately they die. Okay. So the best way to prevent waterborne infection is to boil the water, or you can use filter also. Okay. Then moving on, certain infections are vector-borne. Vector का मतलब होता है carrier. The commonest carrier is mosquito. The commonest carrier is mosquito. I'll give you one example. There is this mosquito called as female Anopheles mosquito. फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर ना मलेरिया के जर्म्स होते हैं, और मलेरिया के जो जर्म्स होते हैं उसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं. एंड प्लाज्मोडियम इज अ टाइप ऑफ व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म? इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटोजोआ. सो इसकी वजह से क्या होता है? मलेरिया होता है. सुनते जा ध्यान से. वैसे ना एक और मॉस्किटो है जिसका नाम है एडीज मॉस्किटो. इसके अंदर वायरस होता है, उस वायरस का नाम है डेंगू वायरस, और इसके वजह से हमको डेंगू होता है. अब सबसे पहली कमाल की बात यह है कि ये दोनों भी जो इन्फेक्शन है, मलेरिया और डेंगू, मलेरिया होता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ की वजह से, डेंगू होता है वायरस के वजह से. सो प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया, अमीबा, फंगस, दीज आर ऑल जर्म्स, दीज आर ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हम में कैसे अलग अलग कास्ट, क्रीड, कल्चर, ट्रेडिशन होता है, तो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी अलग अलग जात समाज होता है. सॉरी, इनमें भी जात समाज, हाँ इनमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं बच्चों. नाउ हियर व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि बच्चों कैसा है ना कि डेंगू होता है वायरस की वजह से, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ की वजह से जिसका नाम है प्लाज्मोडियम. और कमाल की बात यह है ये दोनों जिस मच्छर की वजह से फैलता है ना, दैट इज फीमेल मॉस्किटो. One very important point that I would like to discuss for this particular lecture is male mosquitoes usually do not bite. Male mosquitoes का main source of nutrition is nectar. Nectar is a sweet substance which is present inside the plant parts like flower. Honeybees जो suck करते हैं ना plant के अलग अलग parts से, flower से, उस मीठे पदार्थ को बोलते हैं nectar.
सुनते जा ध्यान से, एकदम यो बायो नॉलेज है बेटा। ओके, अब बात ऐसी है कि मेल मॉस्किटोज को खून नहीं चाहिए रहता है। मेल मॉस्किटोज दे आर सफिशिएंट विद नेक्टर, so usually male mosquitoes are found in different garden, they are found in different wildlife or forest area, whereas female mosquito को कैसा है ना, just think logically, male और female में से अंडे किसको देना है? Who has to lay large number of eggs? Female. Since female has to lay large number of eggs, her nutritive demand is higher as compared to male. That is the reason why female mosquitoes, they don't find nectar to be sufficient for their body requirements. So nectar से उनका गुजारा नहीं होता है, इसलिए फीमेल मॉस्किटो को नेक्टर से भी ज़्यादा पौष्टिक, ज़्यादा न्यूट्रिशियस फ्लूइड चाहिए रहता है। और विश्व में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस फ्लूइड जो है वो है ब्लड। यम्मी टेस्टी। ये मैंने टेस्ट नहीं किया, मजाक कर रहा हूँ। ओके, अब बात ऐसी है बच्चों, इसलिए ना फीमेल मॉस्किटोज ब्लड सक करती है। आज के लेक्चर का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये, मेल मॉस्किटोज डू नॉट बाइट। दैट सेज अधिकतम बार तेरे को जो मच्छर काटता है ना, वो काटता नहीं है, वो काटती है। सो इट इज द फीमेल मॉस्किटो दैट बाइट्स। Remember that. So next time when the mosquito is biting you, always remember point number 1. Tell to your friend, you know that's a female mosquito. Your friend will say, हाँ कैसा पता चला? Can you see that's female wearing मंगलसूत्र, इसलिए female कैसा पता चला? Then you're like, hey मंगलसूत्र थोड़ी पहनेगा पागल। Okay, it is because only the female mosquito bites. Then your friend will be like, wow, amazing. Why? Because she has to lay large number of eggs. Then where are male mosquitoes? Male mosquitoes are found in garden. Because their nutritive demand is fulfilled by the nectar itself. Then your friend will be like, amazing. इतना यो बायो कौन सिखाया? Then you tell, you go to YouTube and follow the channel यो बायो. You will find दाढ़ी वाला अवस्थी सर teaching awesome biology. बताओ अपने दोस्तों को बताओ। चल मैं तुमको और एक बात बताता हूँ। जब एक मच्छर अपने स्किन पर बैठता है ना, अब डेंगू का मच्छर और मलेरिया का मच्छर कैसे फर्क करोगे? समझो ये तुम्हारा स्किन है, ये मच्छर को देख, ओके और ये तुम्हारा स्किन, ये मच्छर को देखो। तो ये मच्छर देखना, ये मच्छर ना इसका बॉडी इज पैरेलल टू योर स्किन, और ये मच्छर को देख, इसका बॉडी मेक्स एन अक्यूट एंगल विद योर स्किन। नाउ दिस इज योर होमवर्क, यू विल फाइंड आउट मलेरिया और डेंगू मच्छर को कैसे पहचानना। एक मच्छर तुम्हारे स्किन के साथ पैरेलल बैठता है और एक मच्छर हमेशा इंक्लाइंड बैठता है। So this is your homework number 1. Second, मलेरिया और डेंगू में से ऐसा कौन सा वाला मॉस्किटो है जो सिर्फ थोड़ा ही उड़ सकता है? It can fly only up to the level of your knee joint. इसलिए ना बहुत सारे साइंटिस्ट ये भी बोलते हैं कि मलेरिया का मच्छर ना रात के टाइम काटता है, डेंगू का मच्छर अक्सर सुबह के टाइम काटता है। क्यों सुबह के टाइम? क्योंकि जब हम बेड से उठते हैं, पैर नीचे करके चलने लगते हैं, डेफिनेटली पैर नीचे करके ही चलेगा ना, उड़ेगा थोड़ी हवा में। ओके, तो जब तू चलेगा ना तब वो तेरे को काटेगा। जब तू बेड पे सोता है ना तो वो उतने लेवल तक फ्लाई नहीं कर सकता। सो यू विल कंफर्म दिस पॉइंट। मलेरिया और डेंगू में से कौन सा मच्छर ऊंचा उड़ सकता है, कौन सा मच्छर इतना ऊंचा नहीं उड़ सकता? मलेरिया और डेंगू में से कौन सा मच्छर स्किन के सरफेस को पैरेलल बैठता है और कौन सा इंक्लाइंड बैठता है? दिस इज योर होमवर्क, यू विल पुट इट इनटू द कमेंट सेक्शन। क्लियर है? अच्छा, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मलेरिया और डेंगू ये दोनों में ना पेशेंट का प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट, रिमेंबर वन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ओके, किसी का भी ब्लड रिपोर्ट्स कराएगा ना डॉक्टर अवस्थी से याद रखो, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट 1,50,000 से लेकर अप्रोक्सीमेटली 3,50,000 तक होना चाहिए। 1,50,000 से लेकर 3,50,000 तक होना चाहिए। ओके, अब मलेरिया और डेंगू में से डेंगू ज्यादा खतरनाक है, दोनों में प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। तो अगर किसी का प्लेटलेट काउंट कम हो गया ना, सो माय डियर स्टूडेंट्स ये हमेशा याद रखना, उसको बहुत सारा क्या खाने बोलो? पपैया। उसको बहुत सारा क्या खाने बोलो? कीवी। उसको बहुत सारा क्या खाने बोलो? सर ड्रैगन देंगे, ड्रैगन नहीं खाने का, वी आर नॉट चाइनीज पीपल। ड्रैगन फ्रूट खाने बोलने का। ओके, प्लस उसको बहुत सारा ना खजूर खाने बोलो। लेट मी राइट द हिंदी वर्ड, खजूर, बहुत सारा बीट, कैरेट,
और एक टैबलेट भी आती है जिसका नाम है कैरी पिल. 1 tablet in the morning, 1 tablet at night. This can be given to patients because this will improve the platelet count of the patient. किसी को भी मलेरिया डेंगू रहेगा ना तो उसको ये एडवाइस करना, and then they will be like very much thank you and how did you know? Then tell them again, go to YouTube, follow Yo-Yo Bio. There is this Avasti sir who is spreading this fantastic subject का knowledge called as biology. ओके अच्छा, दूसरी बात ये याद रखो कि मलेरिया और डेंगू, ओके अब इसको अगर प्रिवेंट करना है, if there is vector borne disease, तो ये जो वेक्टर्स होते हैं ना, जो कैरियर होते हैं मॉस्किटो, अपने को ये मॉस्किटो का ब्रीडिंग रोकना है. ब्रीडिंग यानी रिप्रोडक्शन, इनका रिप्रोडक्शन रोकना है. सो मलेरिया और डेंगू के मॉस्किटोज को प्रिवेंट करने के लिए रेनी सीजन में स्टूडेंट्स आप लोग ये याद रखना कैसा होना चाहिए ना कि आजू बाजू ज्यादा पानी जमा होने मत दो. डू नॉट अलाउ एक्सेस ऑफ वाटर एक्यूमुलेशन इन एंड अराउंड योर सराउंडिंग, नंबर 1. नंबर 2, इफ यू आर यूजिंग अ वेस्टर्न टॉयलेट, ओके, सो व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट, द कमोड, ओके, उसको बंद रखो. घर में जितनी भी बाल्टी है, बकेट्स है, उसको बंद करके रखो. इफ यू डोंट हैव एन अप्रोप्रिएट ढक्कन और द लिड ओवर इट, यू कैन यूज अ प्लास्टिक कटिंग और अ पेपर कटिंग, उसको बाल्टी के ऊपर रखो एंड देन जस्ट फोल्ड इट इनसाइड. घर में अगर बहुत सारे पॉट्स हैं, गमला है, ओके, तो उसमें इतना पानी मत डालो कि पानी फ्लोट होते रहे बेटा. सो जितना हो सके ना पानी जमा मत होने दो. नंबर 1, आजू बाजू में कोई ओपन गटर है ना तो बिल्डिंग के सेक्रेटरी और चेयरमैन को इन्फॉर्म करो. एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन योर हाउस एट पर्सनल लेवल व्हाट इज द प्रिवेंशन, ओके, फैन का स्पीड फास्ट रखो. अप्लाई मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम. मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम में जैसे ओडोमॉस करके क्रीम आता है बेटा. फिर मच्छरदानी का इस्तेमाल करो. यू कैन यूज मॉस्किटो नेट्स. And very 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 important, other than that you can use Mortein and Goodnight and other those coils also. Nowadays we have this machhar agarbatti also in our India. But let me tell you as a doctor, there are many people those who are allergic to it. So अगर मॉस्किटो का ये अगरबत्ती यूज कर रहा है, उसके बाद किसी को सिर में दर्द, छींक आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है, खांसी आ रहा है या ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ मॉस्किटो अगरबत्ती. सो रूम में पहले मॉस्किटो अगरबत्ती जला लो, धुआं कर लो, उसके बाद फैन चालू करो, लेट द स्मोक गो अवे एंड देन एंटर, और एल्स एलर्जी के हिसाब से भी तकलीफ होता है. सो ये कुछ बातें आप लोग को याद रखना है बच्चों. एंड लास्ट आई विल गिव यू वन मोर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. देयर इज दिस फिश व्हिच इज कॉल्ड एज गैम्बूसिया फिश. गैम्बूसिया फिश क्या करता है ना, मॉस्किटो का जितना भी लार्वा है उसको खा जाता है. और वैसे ही ना एक और फ्लाई है जिसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई. ड्रैगन फ्लाई है ना, ऐसा एकदम टिपिकल हेलीकॉप्टर जैसा दिखता है. उसका ऐसा टेल एकदम लंबा होता है, आगे ऐसा गोल हेड होता है. अपने इंडिया में लोकल लैंग्वेज में उसको हेलीकॉप्टर बोलते हैं. ओके, जरा भी डेंजरस नहीं होता है, दिखता है डेंजरस, बट कमाल की बात है उड़ते उड़ते हवा में मच्छर को खा लेता है. सो ड्रैगन फ्लाइज कैन ईट मॉस्किटो एंड गैम्बूसिया फिश कैन ईट द मॉस्किटो लार्वे. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू पिक अप है, मॉस्किटोज में देखो फीमेल का क्या एटीट्यूड, क्या स्वैग है. फीमेल इज लाइक आई हैव टू ले एग, मेल इज लाइक ओके फाइन डोंट शो एटीट्यूड, आई हैव टू ले एग्स, लार्ज नंबर ऑफ एग्स, सो व्हाट डू यू वांट, सो आई हैव टू ईट गुड फूड, ओके व्हाट डू आई डू, शुड आई ब्रिंग नेक्टर फॉर यू, नेक्टर से मेरा गुजारा नहीं होगा, नेक्टर इज नॉट सफिशिएंट, देन व्हाट डू यू वांट, आई नीड ब्लड, गिव मी ब्लड. If I don't get blood, I'll suck your blood. And male is like, oh, don't suck my blood. Go to humans, go to animals, suck their blood. We should learn from mosquitoes. You see, female have a superior diet, and it is so pathetic in some countries and in some families. I would not like to take the name. Even if they are educated, even if they are well civilized, socio-economic point of view, they are बिलोंगिंग टू अपर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, बट स्टिल टुडे आज भी हमारे कंट्री में बहुत सारे जगह पे कैसा होता है ना, फीमेल है ना सब मेल्स के बाद खाना खाती है. इट इज सो बैड. फीमेल बचा कुचा खाना खाती है. मेजॉरिटी फास्ट जो है ना उपास फीमेल को रखना पड़ता है. बासी खाना खाती है. भाई और बहन में, ब्रदर और सिस्टर में, द ब्रदर इज गिवन न्यूट्रिशियस फूड, द सिस्टर इज गिवन स्टेल फूड, सिस्टर इज गिवन लेस फूड. इट इज एब्सोल्युटली बैड. In fact, when you will come up for advanced biology lectures, I will teach you in college section that the females will menstruate. They lose blood through the reproductive cycle, which is called as menstrual cycle. They lose calcium as they keep on aging. They lose lot of nutrients when they reproduce and give rise to a child.
So my dear friends, my dear students, please understand this from biology point of view that a female needs more nourishment rather. If I would have been a female, पूरे घर का खाना मैं बना रहा हूँ और मैं सबसे लास्ट में खाऊं, no, I would have been a biological female. मैं खाना बनाता and then I would have eaten first. Then my husband and my son or my बच्चा or my सास ससुर would have come and they're like, बहू तुम लास्ट में खाओ. I am like, चलो निकलो, पहला मैं खाएगा और अगर तुम लोग नाटक करेगा तो खाना तुमको भी नहीं देगा. Female has to get that priority in terms of eating. Extremely important, my dear students. Did you get this? चलो, take a screenshot of this. Quick. Alright. Are we done with this? Okay. Now, for blood-borne infection, you have to just remember that the blood has to be screened. It has to be checked before the blood transfusion takes place. Okay. Now take a screenshot so that even this word gets included. Done? Alright. Chalo. Now let me rub this. जो इंपॉर्टेंट बातें बताई है ना बेटा उसको याद रखना अच्छे से. हाँ, I'll rub this appropriately so that whatever I write that will be clearly visible to you. अच्छा बच्चों, जब समझो हमको सर्दी हो जाती है, whenever we develop common cold, okay, and then we go to our class or we go to our school. Let's say one of our friend has developed common cold and he's like always हचू, okay, he keeps doing this. अब उसके जो germs हैं वो हमारे body में भी जाते हैं. But what we find is if anybody develops a common cold, okay, it's not like that कि everybody around him or her develops common cold. हर किसी को सर्दी नहीं होएगा. ऐसा क्यों होता है? So let's come to this point. So when someone has common cold, not all are affected by common cold. उसके आजू बाजू में जितने भी जन हैं ना सबको common cold नहीं होगा. अब ऐसा क्यों होता है? Because the commonest reason is one system that is called as immune system. जिसका immune system जितना ज़्यादा strong है, वो उतना ही infection को resist कर सकता है, वो उतना ही infection के खिलाफ लड़ सकता है. So अगर मेरे friend को common cold है, he sneezes, some germs will go into my body, but my immune system manages to produce a certain antibodies. My immune system manages to produce certain special type of WBC, that is white blood cells. White blood cells are the main fighting soldiers. White blood cells, they are always of this psychology. Aata machi satakli. Okay, whenever any germs comes into the body, okay, these WBCs, they approach to the germ and they are like, hello, bacteria, why you are here? Bacteria is like, I am guest. और तुमको रूल पता होना चाहिए, अतिथि देवो भव. WBC is like, oh hello, there is no अतिथि देवो भव. वो भारत देश में होता है, ये ह्यूमन बॉडी है. Here we believe भव भव भव. चलो भागो यहाँ से, you are not allowed over here. So WBCs, they manage to fight with this particular bacteria and they kill them. Okay, so what happens is, it is because of immune system, not all are affected by common cold. Not everybody is affected by common cold. But now as per this definition, what we can assume is, infectious diseases, whenever anybody develops infectious disease, that means his immune system was weak for a temporary duration. That means his immune system was not working properly for temporary duration. So infectious disease का दूसरा definition ये हो जाता है कि अगर मुझे कोई infection हो गया, यानी वो germs मेरे body में आया, establish हुआ और मेरे body को बीमार कर दिया. क्यों ऐसा हो पाया? क्योंकि मेरा immune system बराबर से काम नहीं कर रहा था.
my ability to fight with the germ, that is immune system, was weak at that particular duration of time. So sir, I have a question, what should I do so as to improve my immunity? It's a good question. So beta, if you wish to build up your immunity, then you have to work upon number 1, diet, number 2, exercise, number 3, sleep, and number 4, stress-free life, for which you will have to follow yoga and I love this, yoga and meditation. Yoga and meditation, see, it's not a big deal that you have to follow the full term course of yoga or meditation. No. You can simply do Surya Namaskar, basic exercising, breathing exercises. You can close your eyes, you can look towards your third eye, and you can just pray to your God for 2 minutes, 3 minutes. You can pray to Jesus, you can pray to Allah, you can say Om Namah Shiva, you can say Om Shri Ganeshaya Namah. Okay, say this for 2 minutes, 3 minutes, and pray to the God that whatever respect, disrespect I have, whatever happiness, sadness I have, whatever anger, jealousy, fear, okay, all bad emotions that I have is yours. Speak to the universe will take it away, and tell to the universe, tell to your Lord that He bestow me, enlighten me with good knowledge, with good energy, and I am going to make sure that I will utilize it for the benefit of mankind. That gives you a lot of positivity. Other than that, no specific yoga meditation. किसी दिन अगर if you wish to learn yoga meditation, then अवस्थी सर ना ऐसा ऑरेंज कलर का कपड़ा ऐसा आधा नंगा होके आएगा, दाढ़ी बढ़ा के आएगा ना, जैसे सांस लो ओके. एनीवे उतना डिटेल में मत जाना, बेसिक सा ही करने का, दैट्स मोर देन इनफ. ओके, डाइट, योर डाइट हैज टू बी फिल्ड विद गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, तेरे डाइट में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होना चाहिए. ओके, क्योंकि अगर तेरा डाइट अच्छा है, अगर तू रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहा है, अगर तेरा स्लीप अप्रोप्रिएट है, एटलीस्ट अराउंड 6 to 8 hours you should sleep, and if you have a stress free life, how to achieve stress free life? You can achieve it by doing yoga and by doing meditation. Then moving on, the specific way of preventing infection is by vaccination, so that your immunity becomes stronger. Vaccination is also called as immunization. Now, this talks about the achievement of this great scientist called as Edward Jenner, one of my favorite scientists. Edward Jenner was the first scientist to invent a vaccine. Have you ever wondered that कि in time of today there is not even a single case of smallpox? स्मॉलपॉक्स को हमने पूरी तरह से इरेडिकेट कर दिया. इरेडिकेट यानी पूरे वर्ल्ड में ना एक भी पेशेंट नहीं है स्मॉलपॉक्स का. नेचर गेव दिस इन्फेक्शन स्मॉलपॉक्स, साइंटिस्ट हैव रिटर्न इट बैक टू द नेचर. टेक इट लाइक अ रिटर्न गिफ्ट, एंजॉय. ओके, बट लेट मी टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स, वंस देयर वाज अ टाइम, एडवर्ड जेनर के टाइम पे ना लोगों को स्मॉलपॉक्स बहुत ज़्यादा हो रहा था. जब ये स्मॉलपॉक्स जस्ट आया हुआ था, दिस इन्फेक्शन वाज जस्ट न्यूली नोन, एग्जैक्टली लाइक कोविड. लॉकडाउन बंद, सब एस्ट्रोनॉट का कपड़ा पहन के घूम रहे हैं हम डॉक्टर्स लोग. आई हैव बीन सर्विंग 550 पेशेंट्स, 550 कोविड पेशेंट विथ मी एंड माय कलीग, ओनली 2 डॉक्टर्स, wearing those entire PPE kit, personal protective equipment, and inside we used to feel so stuffy, so hot, and we were like, we are going to suffocate and we are going to die doing service to mankind. But yes, Lord was protecting us. So probably I am taking this lecture today. So जिस हिसाब से कोविड को लेके हम लोग डरता है ना, वैसे एक टाइम था बच्चों जब लोग है ना स्मॉल पॉक्स को लेके बहुत डरते थे. स्मॉल पॉक्स का अगर तू फोटो गूगल करेगा ना, इतना फोड़ी आता था ना बॉडी पे, पूरा बॉडी ऐसा फोड़ी फोड़ी वाला हो जाता था. स्किन कम ऐसा लगता था बबल रैप है, फोड़ी फोड़ी हो गया एकदम. एंड फोड़ी के बाद ना इट यूज्ड टू लीव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्कैरिंग. स्कैरिंग का मतलब होता है स्कार टिश्यू. स्कार टिश्यू इज लाइक, तेरे दोस्त को समझो फॉर एग्जांपल किसी ने चाकू मार दिया, चाकू मारने के बाद डॉक्टर ने स्टिचेस लिया, तो स्टिचेस का स्कार रह जाता है ना.
सो स्कार मीन्स मार्क, सो जहां जहां फोड़ी फूटता था ना उसका मार्क रह जाता था। सो काउपॉक्स एक बहुत ही डेंजरस इन्फेक्शन था एडवर्ड जेनर के टाइम। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ड जेनर he simply started thinking and his choti was standing. Choti, okay, choti, चाणक्य चोटी, choti was standing. Choti is a sign of intelligence. उसने सोचा इतने सारे लोगों को स्मॉल पॉक्स हो रहा है, उनमें से कुछ लोगों को स्मॉल पॉक्स हो ही नहीं रहा था। एंड एडवर्ड जेनर वाज लाइक अबाबा, एक्सक्लेमेशन, फीलिंग, इनको स्मॉल पॉक्स क्यों नहीं हो रहा है? तो उनको बुलाया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। उसने क्या नोटिस किया, जिनको जिनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था ना, वो सब की सब लड़कियां थी और उन सब का काम था गाय का दूध निकालना। सो दे वर डेयरी, और यू कैन से दीज वर मिल्क मेड्स, मेड यानी नौकरानी। सो इनका काम था कि गाय ये सब का, डेयरी एनिमल्स का दूध निकाला था। तो जब एडवर्ड जेनर ने उनसे पूछा कि भाई तुम सबका क्या काम है, तो देखा सब में कॉमन बात क्या निकली कि सब गाय का दूध निकालते हैं। सो एडवर्ड जेनर ऑब्जर्व करने लगा क्या रिलेशन है गाय का दूध निकालने की वजह से इनको स्मॉल पॉक्स क्यों नहीं हो रहा है। फिर एडवर्ड जेनर ने उनके बॉडी को जब एग्जामिन किया तो देखा उनके हाथ पे, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे ऑलरेडी रेड कलर का रैश था, ऑलरेडी रेड कलर का रैश था, रेड कलर का पैचेस था। तो एडवर्ड जेनर ने बोला ये क्या हो रहा है तुम्हारे स्किन को, क्योंकि वो अलग इन्फेक्शन था। तो उन लड़कियों ने बोला अरे साहब क्या टेंशन लेता है, ऐसा ही सेम इन्फेक्शन ना काऊ को भी है। हम जिस गाय का दूध निकालते हैं ना, उसके मिल्क ग्लैंड्स के ऊपर भी ऐसा निशान है, उधर से आया हमको। देन एडवर्ड जेनर ने लाइक हाँ थैंक यू, अच्छा पॉइंट बताया। फिर वो गया काऊ के मिल्क ग्लैंड्स को देखा, हाँ फिर उसको पता चला अच्छा ये एक नया इन्फेक्शन है जिसका नाम है काउपॉक्स। और सबसे कमाल की बात ये है बच्चों कि काउपॉक्स जो है ना, इट इज अ वेरी माइल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज। सो काउपॉक्स इज अ माइल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज, यानी काउपॉक्स के वजह से डेथ नहीं हो रही थी, बट स्मॉल पॉक्स के वजह से डेथ हो रही थी। तब एडवर्ड जेनर को ऐसा स्ट्राइक हुआ, उसने क्या किया ना कि उस काउपॉक्स के इन्फेक्शन को इंजेक्शन में भर लिया। ओके, ही स्टार्टेड फिलिंग काउपॉक्स इन्फेक्शन इन इंजेक्शन एंड ही स्टार्टेड इंजेक्टिंग इट इनटू पीपल। शुरुआत में उसने एक छोटे से बच्चे को, लगभग 7-8 साल का एक बच्चा था, उसको इंजेक्शन दिया और फिर उस बच्चे को बोला अब तू है ना जितने भी स्मॉल पॉक्स पेशेंट है उनके बीच में घूम। सो उस बच्चे को फिर अल्टीमेटली स्मॉल पॉक्स नहीं डेवलप हुआ। सो यहाँ हम लोग ये सीख रहे हैं कि एडवर्ड जेनर वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू इन्वेंट वैक्सीन। नेचर ने जो स्मॉल पॉक्स हमको दिया, उस स्मॉल पॉक्स के खिलाफ काउपॉक्स के वायरस से एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन डेवलप किया था। नाउ सो वैक्सीनेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट सेज इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ फूलिंग द इम्यून सिस्टम बाय गिविंग इम्यून सिस्टम सर्टेन इन्फेक्शन। सो वैक्सीन में जो भी इंजेक्शन होता है ना, उस इंजेक्शन के अंदर जो भी लिक्विड है, उस लिक्विड में वीक बैक्टीरिया या तो डेड बैक्टीरिया या तो बैक्टीरिया के कोई ना कोई सेल्यूलर पार्ट्स या कंपोनेंट्स होते हैं। एंड व्हेन दे आर इंसर्टेड इनटू द बॉडी, जब इंजेक्शन से बॉडी में आते हैं तब बॉडी के WBCs उससे लड़ने की एबिलिटी डेवलप करते हैं। द WBCs आर लाइक ओके आई गॉट अ फ्री सैंपल एनिमी टू फाइट विथ। सो सब WBC उसको मारता है एंड द बैक्टीरिया लाइक नहीं नहीं मैं बहुत कमजोर है, मेरे को मत मारो। WBC और मारता है, फिर छोटा छोटा WBC को भी बुलाता है, बोलता है कम हियर, इट्स लाइक WWE चैंपियन। यूजुअली वी टेल यू डोंट ट्राई दिस एट होम, नाउ ट्राई दिस एट होम, मारो इसको। सो WBC, our fighting cells, antibodies, they become habituated to fight with these infection, so that in future when real में ऐसा कोई infection आता है ना, we already have circulating antibodies so as to fight with it. So बच्चों यहाँ पे we need to understand vaccination में और कौन से disease का vaccination develop किया गया। So we have developed BCG vaccine for tuberculosis. Tuberculosis in fancy language is also called as Koch's disease. Now this is your homework. You will find out what is the full form of BCG and you will post it into the comment section. BCG vaccine is developed for tuberculosis. We also have vaccine for diphtheria. We also have vaccine for whooping cough.
Then we have vaccine for tetanus. Now, bacha, diphtheria is nothing but it is throat infection. Diphtheria is throat infection. Whooping cough में the patient coughs and the patient का coughing mechanism, coughing sound resembles the whoop of a cow. उसका खांसने का तरीका बहुत स्पेसिफिक है, चाहिए तो इस पे कोई वीडियो है ना, तू चेक कर ले. ओके, नेक्स्ट टेटनस. Whenever we are injured by rusted iron nail, जंग लगा हुआ लोखंड लगता है ना, तब हमको टेटनस का इंजेक्शन लेना पड़ता है. क्यों? क्योंकि उस जंग लगे हुए लोखंड के ऊपर एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी. क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी. और अगर हम लोग ये इंजेक्शन नहीं लेंगे ना, सो दिस बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग गैंग्रीन. गैंग्रीन यानी वो बॉडी पार्ट सड़ जाएगा, इट विल बिकम ब्लैक, एंड देन गैंग्रीन का देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, दैट इज एम्प्यूटेशन. एम्प्यूटेशन का मीनिंग इज सर्जरी. फिर ऑपरेशन करके उस ब्लैकिश डीकम्पोज्ड पार्ट्स को निकालना पड़ता है बेटा. ओके, सो दैट इज टेटनस. Another important point, remember one extra information, once you get injected with tetanus, डॉक्टर ने एक बार टेटनस का इंजेक्शन दिया ना, 6 months तक you will have that coverage. यानी 6 months तक तुमको वापस टेटनस का इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है. सपोज इफ आई गेट इंजेक्टेड विथ टेटनस, ओके, डॉक्टर ने मुझे टेटनस का इंजेक्शन दिया, फिर नेक्स्ट डे मेरे को वापस कुछ जंग लगा हुआ लोखंड लग गया, तो मुझे टेटनस का इंजेक्शन वापस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रीवियस इंजेक्शन लिया है ना, उसका कवरेज 6 months का होता है बेटा. ओके, नेक्स्ट, along with this we have developed rabies vaccine. Rabies is caused by, it is transmitted by bite of infected animals, specifically dogs. However, it is not necessary it can be only dogs. You post it into the comment section which are the other animals. Even a flying bat कैन ट्रांसमिट रेबीज, उसके वजह से भी रेबीज हो सकता है. ओके, वाइल्ड एनिमल्स के वजह से भी रेबीज हो सकता है. अब रेबीज में पहले के ज़माने में डॉक्टर है ना 14 इंजेक्शन दिया करता था पेट में. इमेजिन 14 इंजेक्शन पेट में. बट आज के तारीख में कैसा है ना बच्चों की, हमारे पास 4 से 5 इंजेक्शन का डोजेज फॉर्म अवेलेबल है, एंड दैट इंजेक्शन इज ऑलवेज गिवन इन द शोल्डर. एवरीबडी हैज टू रिमेंबर, रेबीज का इंजेक्शन इज ऑलवेज गिवन इन द शोल्डर, नॉट इन द हिप रीजन. कमर में इंजेक्शन नहीं दिया जाता है. अगर गांव में कोई डॉक्टर तुमको रेबीज का इंजेक्शन कमर में दे रहा है ना, तो उसका डिग्री चेक करो, बिकॉज गांव में ऐसे बहुत सारे फेक डॉक्टर्स, फेक कंपाउंडर्स who claim themselves as doctors, ऐसे बहुत होते हैं बेटा. ओके, सो दैट्स अबाउट रेबीज वैक्सीन. नेक्स्ट, सबसे बेस्ट वैक्सीन है पोलियो वैक्सीन. द एडवर्टाइजिंग कैंपेन सेज दैट 2 बूंद जिंदगी की. नाउ दिस इज ओरल वैक्सीन. इस वैक्सीन में हमको इंजेक्शन नहीं मारना पड़ता है. यू नो दैट्स द रीजन व्हाई दीज स्मॉल बच्चा लोग ना, ये सब छोटा छोटा बच्चू लोग, whenever they come to clinic, moment they see the doctor they start crying. I still remember that when patients they come to my clinic, okay, mother is holding one बच्चू, another mother is holding another बच्चू, और ये बच्चू लोग जब देखते हैं ना डॉक्टर वैक्सीन दे रहा है, इंजेक्शन मार रहा है, सो दैट बच्चू इज क्राइंग, दिस बच्चू ऑल्सो स्टार्ट्स क्राइंग. इसको इंजेक्शन नहीं भी दिया, दिस बच्चू इज लाइक, दूसरे को भी बोलता है यू ऑल्सो स्टार्ट क्राइंग, एंड एवरीबडी स्टार्ट्स क्राइंग. साथ में लड़ी की तरह एक के पीछे एक ये सब रोने लगते हैं. क्योंकि डॉक्टर्स क्या करते हैं ना, डॉक्टर्स इनको इंजेक्ट करते हैं. सो इनके नज़र में ना डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर इज लाइक टेररिस्ट, आतंकवादी गोली चलाता है, डॉक्टर इंजेक्शन चलाता है. ओके, अब पोलियो वैक्सीन इज नॉट लाइक दैट बच्चों. पोलियो वैक्सीन इज ओरल वैक्सीन. इसमें ना सिर्फ ड्रॉप्स देना होता है. सो मोमेंट द बच्चू क्राइज, द डॉक्टर पुट्स ड्रॉप, मस्त है, चलो जाओ घर पे जाओ. ओके, सो दैट्स पोलियो वैक्सीन. अनदर वैक्सीन दैट वी हैव सीन इन अवर कंट्री इज हेपेटाइटिस. वन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एनी वर्ड एंडिंग विथ itis means inflammation. Hepatitis is an infection which causes inflammation of liver. Hepat ka meaning is liver, and this hepatitis is caused by virus. There is hepatitis A virus, B virus, C virus, D virus, E virus, of which India में majority people by 5 years of age they become immune to hepatitis A virus. This hepatitis A virus is responsible for causing jaundice, and this virus comes into our body through contaminated food and water. So by 5 years of age, खराब खाना
खराब पानी खा पी के हमको आदत हो जाती है। दैट्स द रीज़न वाई कोई वेस्टर्न कंट्री से कोई गोरा चाचा, कोई फॉरेनर, कोई गोरा लोग हमारे कंट्री में जब आता है ना, ये लोग जब सादा पानी पी लेता है ना तुरंत बीमार हो जाता है, बिकॉज देयर इम्यूनिटी इज़ वेरी सेंसिटिव। एंड वी इंडियंस, हम लोग वो सादा पानी, गंदा पानी पीता है ना, सो वी आर यूज टू इट, बिकॉज इतने सारे जर्म्स हमारे बॉडी में आके गए हैं ना, सो बॉडी इज लाइक हाँ ये रोज का है। अभी टाइफॉइड आया, ठीक है, कल हेपेटाइटिस आया था, इनका आना जाना चलते रहता है। वी बिलीव अतिथि देवो भव बट इम्यूनिटी सिस्टम से भव भव भव। ओके, सो इतने बीमार हो के ना 5 साल की उम्र तक हमारे कंट्री में हेपेटाइटिस ए वायरस के खिलाफ सब में लड़ने की क्षमता डेवलप हो जाती है। सो ऑल इंडिविजुअल्स दे बिकम इम्यून टू हेपेटाइटिस ए वायरस बाय 5 years of age. Okay, now other than that we also have developed vaccine for measles. मीजल्स भी एक तरह का स्किन इन्फेक्शन है जिसमें स्किन पे ना बहुत सारी छोटी छोटी फोड़ी आती है। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। डन, ऑल राइट। सो दिस वॉज अवर लेक्चर जहां पे हमने वाई डू वी फॉल इल इस चैप्टर का कर दिया स्वाहा। I must tell you that कि while I was shooting this particular lecture, in between the light went away. इलेक्ट्रिसिटी गायब अंधेरा हो गया। ओके, एंड इसके पहले भी आई हैड शॉट दिस लेक्चर एंड बिकॉज ऑफ सर्टन टेक्निकल इश्यूज आई हैड टू रीशूट इट। सो आई वाज रीशूटिंग इट इन बिटवीन द लाइट वेंट अवे. So I had to rub the entire part, then I had to present it once again. I have to continue this particular lecture, but I hope students that you all have followed this lecture. Okay, whatever is your feedback, come down in the comment section. Whatever is your doubt, put it into the comment section. I will get back to you all. Till then, do not forget the mantra. Yo yo bayo, समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो। नमस्ते।